older than the dinosaurs. Dinosaurs are extinct हो गए, sharks are still existing. कुछ तो होगा नहीं. Adaptability. And they are the top predators also. Yes. And like sharks, human beings are the top predators on the planet. Correct. Right? तो अगर हमको भी सर्वाइव करना है उनकी तरह से, कुछ सीखना पड़ेगा. हाँ. तो जब चले आएंगे तो आपको किस तरह की शार्क का बिहेवियर सूट करेगा वो आपको समझना है. Hmm. सो मैंने बुक के अंदर बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग इट शॉर्ट एंड स्वीट मैंने 9 तरह की शार्क्स को यूज किया है. उनके ऊपर एक फिक्शनल स्टोरी. Guys, welcome to another episode of Red Carpet Podcast. And today we have with us Colonel Lavinder Narang. And he's a ex-army, I would say colonel. And now he's leading a very, very, very important role in the corporate world. So we're going to learn from him both how he became a leader in the army. And now he's leading the corporate life. But before we get into that, guys, if you have seen our podcast, if you have liked what we have shared, please support us, like, subscribe. And at Red Carpet, our goal is to bring India's best to the world and the world's finest to India. So thank you so much, sir, for coming to our podcast. I am very excited. I like to learn from you. There's so much. And more importantly, sir, what I love is the book which you have recently written. And I'm going to talk about that in detail. But if you could start with your journey as a child to then choosing army as a career. And of course, now you're a very, very successful person in the corporate world. Uh, Army career is something which is not a choice for most people. So maybe you could take us back in time as to why you went down that path, what motivated you to become an army colonel, and then of course now you're leading a very, very successful corporate life. Uh, Firstly, Kishore, thank you for having me here. It's an honor. Uh, Coming back to the question, I remember growing up in a small town called Karnal, between Delhi and Chandigarh. It's in Haryana, and studied in one school throughout. Though in between, I cleared my Sainik school exam and then had an opportunity to go there, but things never happened. Meanwhile, we had one army guy in the family. That was my uncle, Chacha, you can say. हाँ. And कभी-कभी वो आते थे from Delhi to Karnal when he had to go to Ambala cantonment. And I remember once or twice he came in his army jonga with a great jacket, olive green jacket, and handsome with his goggles on, the aviators so called. Yeah. एक चीज है आर्मी वालों के, they all look very handsome. I guess Most of yes, most of it's them. something the natural charm which goes with the job हाँ. and the energy levels which are very high, and that gets it. So as I grew up, yeah, when I cleared my ND exam, that was the start of my journey, and very exciting, very tough, full of challenges, but full of glory. So we went on, and IMA happened, and after IMA, I went to the infantry regiment, and where I was posted all over. I have had stints in JNK, I have stints in Manipur, Nagaland, entire Northeast, Rajasthan border, Punjab border, and also Andaman Nicobar Islands. So, and these form a lot of part of my entire life's learnings also. Right. So, anything specifically? And of course, uh, you were 21 years in army. You decided that ठीक है बहुत हो गया, अभी मुझे कुछ और करना है कि, or it was something that a corporate opportunity came and then you decided कि हाँ इसको मैं grab कर लेता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं हुआ बिकॉज आर्मी छोड़ना एक लाइफस्टाइल, हाँ. एक कल्चर को छोड़ना है. एंड बिलीव मी इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन. दो हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स छोड़ के आते हैं सिविल स्ट्रीम में, बट उस छोड़ने में जो एक रंजिश होती है, हाँ. हाँ. दैट इज क्वाइट एनॉर्मस. एंड इवन इन माय केस व्हेन आई वाज अबाउट टू लीव, things sometimes happen and take their own course. So after my stint in JNK, I got posted to Delhi. Hmm. And having done everything in the army the way it was supposed to,
Somewhere I think secretly I was looking for something more. I'll explain you कैसे हुआ ये. हाँ. You know, आर्मी में सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है. Hmm. And everything is, there for you to take on and handle your challenges. Hmm. और सबसे बड़ी बात आर्मी में ट्रेनिंग होती है. तो आपको लगातार you keep getting trained and keep getting more used to newer ways of doing things and newer way of fulfilling your tasks and missions especially. और दूसरी बात आर्मी में हमेशा एक पर्पस बहुत बड़ा रहता है. तो पर्पस रहता है कि आपको हमेशा तैयार रहना है लड़ाई के लिए, डिफेंड करने के लिए या अटैक करने के लिए, और कैसे आपने प्लान बनाना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, ये सब की रिहर्सल होती रहती है. तो पर्पस इज ऑलवेज देयर. टुवर्ड्स द फ्रैग एंड ऑफ माय टेन्योर इन द आर्मी मेरे को लगा कि कहीं शायद मैंने चैलेंजेस लेने में थोड़ा गलती कर दिया, थोड़ा मैं डेविएट हो गया. और वो आर्मी में कैसा होता है ना कि आप एक बार क्रॉस कर लो हर्डल्स, तो यू कैनॉट गो बैक एंड डू द सेम थिंग अगेन. लाइफ इज नॉट डजंट अलाउ यू टू टेक अ यू टर्न्स. और वो चीज मेरे में हमेशा थी कि मैं शायद इससे बेहतर कर सकता हूँ. तो जब मेरे को लगा कि मेरे लिए चैलेंजेस थोड़े से कम हो गए हैं आर्मी में, मेरे को लगा कि अब टाइम है मेरे को और बड़े चैलेंजेस और डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस देखने हैं. तो जब मैं दिल्ली में था, स्पेशली जब मैं आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस में मेरा पोस्टिंग हुआ, तो वहाँ पे मेरा एक्सपोजर हुआ फाइनेंशियल वर्ल्ड में. अच्छा. और तब मेरे को लगा कि हाँ, कुछ स्कोप है, मेरे में कुछ ऐसा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ. सो यू वोंट बिलीव एट दैट टाइम 2010 आई स्टार्टेड माय लिंक्डइन जर्नी आल्सो. अच्छा. सो धीरे-धीरे कॉर्पोरेट के बारे में मालूम करना, एंड देन वी डिड आवर एनडीआई गुड़गांव का कोर्स, Okay. सर्टिफिकेशन कोर्स व्हिच इज अवेलेबल फॉर द डिफेंस ऑफिसर्स. Okay. सो वहाँ से मेरा प्लेसमेंट हुआ बॉम्बे में एज अ फैसिलिटी हेड. नाउ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. आई बिकेम अ फैसिलिटी हेड फॉर बॉम्बे जोन. Okay. और बॉम्बे का मेरे को ABC नहीं मालूम था. आई डिड नॉट नो व्हाट इज अंधेरी एंड व्हाट इज घाटकोपर. हाँ. सो जब मैं आया यहाँ पे और मेरे को बोला कि तुम्हारे अंडर में 120 ब्रांचेस हैं और तुमको इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है. सो वो एक जर्नी थी कि सोचना पड़ा एक बार, क्योंकि हियर यू आर, आपने किसी एक मैनेजर की वैकेंसी एब्जॉर्ब की है, जो कि हो सकता है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में वेट कर रहा हो प्रमोशन की, और आपको अपने आप को प्रूव करना है. एंड वंस अगेन, तो उससे ये सीखा मैंने कि कभी-कभी लाइफ में 2 स्टेप्स बैक लेकर आगे बढ़ो, तो वो बढ़त आपको अच्छी मिलती है. दैट ग्रोथ इज समथिंग वेरी नाइस. So I did that. I took a laptop on my back and was on the locals and the autos, and पहले तो मैंने पूरे branches का ब्यौरा किया. अच्छा. Physically. हाँ. Saw what was there, what was not there, understood the organization better, understood structure, understood people better. So people to people communication जो है वो बहुत important है. In my job, facility management, unless you know the people on the ground, things won't move. तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा ग्राउंडिंग था. एंड फॉर्चुनेटली आई कुड डू दैट. एंड देन देयर वाज नेवर लुकिंग बैक, बिकॉज एक बार मेरे को मालूम था, उसे कहते हैं टेरेन को मालूम करना. आर्मी में भी क्या होता है, जब आप पोस्टिंग होती है कहीं पे, तो यू हैव टू नो द टेरेन. तो यहाँ पे एक बार टेरेन मालूम हो गया मेरे को, देन द रेस्ट वाज इजी, आई थिंक, विद माय एक्सपीरियंस फ्रॉम द आर्मी. Excellent. Army training and corporate training are, according to me, poles apart. बराबर? When you come into the corporate world, abhi, today we are talking about technology. The technology in army is all about weaponry, according to me, right? Whereas the technology in corporate world is all about, computers and AI, artificial intelligence. तो आपको लगा कि you were out of place, कि आप, और you were like, नहीं, I'm army trained, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं शुरुआत से शुरू करूंगा. How did you overcome this ocean, and where people were already doing very well, or they knew their subject very well, and you were like completely from a different space altogether, which is army and warfare and everything, and now here's a different warfare which is called corporate warfare. तो आपने वो कैसे bridge किया? How did you overcome that challenge, which
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स को लगता है कि AI will take away their jobs, technology will make them obsolete, और यहाँ पर आप 21 years आर्मी में काम करके इट्स अ रीस्टार्ट। जैसे अभी रिसेंटली एक पिक्चर आई थी 11th 11th पास और 10th पास, आई डोंट रिमेम्बर। तो उसमें बहुत अच्छी सीन है, जो वो गरी एग्जाम देता है गवर्नमेंट का और फिर वो फेल हो जाता है, फिर वो रीस्टार्ट करता है, फाइनली ही गेट्स थ्रू। सो हाउ डिड यू रीस्टार्ट? व्हाट इज इट दैट क्वालिटी दैट यू हैव इन यू, that not only you are now so successful in the corporate world, but you have also written a book which I am become a big fan of, and I'm going to talk about it. तो प्लीज थोड़ा शेयर कीजिए। या सो फर्स्टली ये थोड़ा सा मिसनॉमर है कि बिकॉज इट्स आर्मी इट्स ओनली वेपन्स। सो हमारे हमारे करियर में टाइम टाइम पे हमारे प्रमोशंस के लिए करियर कोर्सेज होते हैं। अच्छा। एंड वो करियर कोर्सेज बहुत स्ट्रेस्ड एंड वेरी फोकस्ड, ओके, या बहुत फोकस्ड होते हैं। और उसके अंदर आपको अगर अच्छा करना है तो आपकी अवेयरनेस, आपकी नॉलेज about everything has to be par excellence. Especially, I can tell about one course which was done in Wellington. This is the staff college course, ओके। popularly known as. तो उस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 1 साल। अच्छा। आपको वेलिंगटन ऊटी के पास जाकर 1 साल आपको डिवोट करना पड़ता है टू हायर लर्निंग। एंड दैट लर्निंग यू आर एक्सपोज टू इमेंस स्ट्रेस्ड लर्निंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और बहुत फोकस्ड लर्निंग होता है, और एक्सरसाइजेज होती हैं, एंड मॉक ड्रिल्स होती हैं, मॉक रिहर्सल्स होती हैं, जो कि आपको डिफरेंट टेरेन्स, डिफरेंट सिचुएशंस में करना पड़ता है, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा। सो आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूरा अपडेट रहता है। प्लस एंड टेक्नोलॉजी देखा जाए, जब वेपन्स टेक्नोलॉजी की बात होती है और डिफेंस स्ट्रेटजी की बात होती है, तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी सिविल मेन स्ट्रीम से ही आती है। हम्म। So you have to understand all those, you know, करेक्ट things about the technology as the civilians would understand. करेक्ट करेक्ट। तो उसका यूज तो होता ही है, बट यस, what you said is absolutely correct. There are some traits which help an army officer bridge this gap. And I was fortunate कि मेरे लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस आए, उसने मेरे को एक ऐसा अपलिफ्ट दिया, एक थ्रस्ट दिया, कि जो मेरे को कैपेबल बनाया। जैसे कि आर्मी में एक चीज होती है कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा। हर तरफ, एवरी डे देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फेसिंग यू, एंड उसकी एक आदत हो जाती है। यू नो हाउ टू हैंडल दैट कॉम्प्लेक्सिटी इवन इफ यू डोंट नो व्हाट इज अहेड ऑफ यू। हम्म। तो यू कैन से क्लैरिटी केओस के अंदर ढूंढना, हाँ। ये एक आर्ट आ जाती है हमको, कि कैसे एक केओस सिचुएशन में जाकर भी क्लैरिटी से काम करना। हम्म। And third thing which I think is the kind of disruption that you can create with your ability to intervene immediately, to take initiative, to carry on with resilience, and that kind of a thing which you get, वो आई थिंक वो अदरवाइज पॉसिबल नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो मेरे को एंग्रेन हुई आर्मी से, तो वही चीज़ें जब मैंने कॉर्पोरेट में आया, हम्म। तो मैंने देखा कि यहाँ पर भी काफ़ी कुछ सेम है। प्रेशर्स सेम हैं, लोग वैसे ही नेचर के होते हैं, बिकॉज नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री रिमेन्स द सेम। हम्म। बट व्हाट इज डिफरेंट इज हियर द पर्पस इज नॉट क्लियर। अच्छा। कॉर्पोरेट में क्या होता है, यू हैव टू डिजाइन योर ओन पर्पस। हम्म। सो वहां पर जो एक चैलेंज मिलता है, हाँ। आई थिंक दैट चैलेंज वाज समथिंग व्हिच आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर, एंड इट हैपेंड। अच्छा। So I will give that one example. When I joined the corporate and I did my work, I could find out there were a lot of assets which needed to be, properly tagged and properly assigned and properly moved to the right places. So ऐसी चीजें पहले किसी ने शायद की नहीं थी। अच्छा। But because we are out to see, to seek the purpose, हाँ। तो वो एक एबिलिटी जो आती है कि हम जाकर खुद उसको चैलेंज को ढूंढ के लेके आते हैं। हाँ। सो वो एक एबिलिटी धीरे-धीरे मेरे को आगे बढ़ाती है। जब आप एसेट की बात कर रहे हो तो फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट्स। अच्छा। मुझे एक चीज आपसे सीखनी है पर्सनली।
मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी लोग जो है बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ एंग्जायटी विद यूथ, स्ट्रेस लेवल्स आर टू हाई। लेकिन आप आर्मी की जो अ, लोग होते हैं, दे डील विद दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो क्या आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को जो आपकी पॉडकास्ट सुन रहे हैं अभी, हाउ कैन अ सिविलियन inculcate and overcome anxiety, stress, insecurity in their corporate life, taking an example or some exercises that you have learned in your army, which they can implement. अगर आप इसके ऊपर थोड़ा शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वेरी नाइस। आई थिंक अच्छा बात है कि अच्छा टॉपिक है कि कैसे हम स्ट्रेस लेवल्स को कॉर्पोरेट में अपना कंट्रोल कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन ओवरराइड दैट। आई थिंक द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू माइंड इज द क्लैरिटी ऑफ योर पर्पस कि आप वहाँ कर क्या रहे हो और आपका काम क्या है। तो वो उसके बारे में अगर क्लैरिटी है आपको, तो आई थिंक आप आधा काम तो आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है, बिकॉज़ आपको मालूम होता है कि आपके रास्ते में किस टाइप के चैलेंजेस आ सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ जब जब चैलेंजेस आते हैं, तो उस टाइम पे आपको यू डोंट हैव टू गेट अफ्रेड। और वही चीज़ मैंने शायद बुक में भी लिखी है कि जब चैलेंजेस आते हैं तो आप उसको ग्रैब कीजिए, आप उसको अपना दोस्त बनाइए। बिकॉज़ ओनली वन्स आप यू एम्ब्रेस दोज़ चैलेंजेस, यू कैन गो फॉरवर्ड। इनफैक्ट काफ़ी अच्छी और भी लिटरेली वर्क्स हैं, किताबें हैं इस पर। एंड आई थिंक दिस इज़ वन थिंग व्हिच कैन हेल्प। एंड थर्ड थिंग इज़ जब जब आप कुछ करते हैं, तो आप उसको फ़ोकस करके करें। हम्म, The kind of resilience you have to adopt is something which comes with practice, and उस practice के अंदर आपको कभी भी give up नहीं करना है। You have to keep persisting, keep going forward, and adopt the kind of framework कि आप सारे अपने कोलैबोरेशन में काम करें, आपके टीम के साथ काम करें, और आपके जो स्टेप्स हैं फॉरवर्ड, उनको आप प्रॉपर्ली डिज़ाइन करें अपने आप कि आप कहाँ पर अटक रहे हैं और उस अटकने के लिए आपको क्या करना है। एंड कीप टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। जब आप बड़ा सोचेंगे कि हाँ मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, तो शायद वो लॉन्ग जंप नहीं कर पाएंगे। हम्म, बट आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके जंप करेंगे, हम्म, यू विल फाइंड दैट दोज जंप्स आर वेरी फ्रीक्वेंट एंड दैट टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। हम्म। Is there any specific exercise that you do, whether it's breathing exercise or mental exercise or yoga or anything that you do that kind of snaps you out of uh, a zone of uncertainty, a zone of nervousness? और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कभी-कभी बहुत सारे लोग जो हैं जो कॉर्पोरेट मीटिंग प्रेजेंटेशन करते हैं, दे स्टार्ट पैनिकिंग, और जो इंटरव्यू में जाते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। लेकिन मैं जब आर्मी ऑफिसर से मिलता हूँ, मुझे लगता है कि दे आर मेड ऑफ स्टील। मतलब वो व्हाट इज इट दैट 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 यू गाइस डू एज अ रिचुअल एवरी डे, जो सिविलियंस नहीं करते हैं और जो करना चाहिए। ऐसा कुछ है क्या मंत्र? इसको दो भागों में लूंगा मैं। हाँ। पहला तो कि आई थिंक देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन। अच्छा। हर एक इंसान की अपनी एक प्रोक्लिविटी होती है, एक टेंडेंसी होती है किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल में काम करने की, हम्म, यानी पर्टिकुलर स्टाइल में अपना स्ट्रेस रिलीवर ढूंढने के लिए, या पर्टिकुलर स्टाइल में अपना एक मेडिटेट करने के लिए। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, कुछ लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं लंबा लंबा दौड़ता हूँ। सो आई थिंक आई रन अ लॉट, and I've been taking part in marathons earlier, and I was a good runner even in the army. So that aspect, I think, when you run and the moment your breathing pattern aligns with your strides, you reach a harmony. राइट। वहाँ जब हारमोनी में पहुँचते हैं तो आपका एक ध्यान अपने आप बन जाता है, which is almost like meditation. हम्म, And when you complete it, I think you are in a different zone. And then you start afresh. आपका एक रीबूट हो जाता है ऑटोमेटिकली। हम्म, तो वो एक मेरे साथ बहुत होता है। सेकेंडली, जो आप आर्मी ऑफिसर्स की एक नेचर बता रहे हैं कि वो कहीं कहीं भी अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, हम्म, वो आती है एक बहुत टफ ट्रेनिंग से। जो दिखता है दैट इज ओनली 1%, और जो आइसबर्ग के नीचे है वो काफ़ी काफ़ी बड़ा एक पोर्शन है। एंड उस पोर्शन के अंदर एक
जो ट्रेनिंग रेजिमेन है, जो डिसिप्लिन है, जो एबिलिटी ऑफ नॉट गिविंग अप, I think that is something I still remember so many occasions of my NDA, IMA training and my army training, especially commando training हाँ. in Belgaum, where you just cannot give up. Hmm. ऑप्शन नहीं है, Hmm. और जब ऑप्शन नहीं होता है तो ऑटोमेटिक रास्ता निकल जाता है। So well said. So well said. Sir, you are an army officer and I'm sure you have kids as well, right? तो कभी-कभी लगता है कि बच्चे जो है वो like as a father with the kind of training I have, I look at my kids and I'm like, oh my God, ये मेरे बच्चे तो अ, आधा भी नहीं करते जो मैं करता हूँ। तो ऐसा कभी-कभी लगता है कि I should also give them the same training or you are a very you're a cool father कि नहीं यार भाई मैंने ये सब झेल लिया, इनको झेलने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ है? What is your as a father, what's your philosophy as a husband? Are you like are you also an army officer at home? वेल आई नो, एक इमेज है आर्मी ऑफिसर का हाँ. कि घर में भी कड़क एंड बाहर भी कड़क। अच्छा. वेल, इट डजंट हैपन लाइक दैट। Okay. ये ज़रूर है कि एक कल्चर बन जाता है घर में, बिकॉज़ द फैमिली ऑल्सो इज़ लिविंग इन द कैंटोनमेंट्स, दे आर ऑल्सो सीइंग यू डे इन एंड डे आउट। लाइक आई रिमेंबर माय वाइफ नाउ कमेंटिंग कि जब भी हमारी एक फिजिकल ट्रेनिंग की परेड होती थी और हम बड़े-बड़े पिट्ठू पहन के भाग ले जाते थे, शी यूज्ड टू सी मी ड्रेस अप एंड गेट गोइंग, एंड शी यूज्ड टू गेट मोटिवेटेड टू गो फॉर अ रन हरसेल्फ। अच्छा. कभी-कभी हम रास्ते में मिलते थे, वो भाग के आई हुई है, मैं अपना परेड कर रहा हूँ, Correct, correct. दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सिमिलरली व्हेन योर चिल्ड्रन ग्रो अप, Hmm. दे ऑब्जर्व यू डूइंग सर्टेन थिंग्स इन अ वेरी रेजिमेंटेड मैनर, Right. कि इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे उठना है, बेड बनाना है, Hmm. बूट साफ करने हैं, स्मॉल थिंग्स Correct. व्हिच बिकम वेरी वेरी सेकंड नेचर टू यू, और वो बाय ऑब्जर्वेशन Correct. चिल्ड्रन लर्न इट। एंड फिर क्या होता है, जब वो बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो अलग से लगते हैं, Hmm. और फिर अच्छा बाकी बच्चे क्या बोलते हैं, ये फौजी का बेटा है या फौजी की बेटी। Yeah, right. So that's why you see lot of army children They stand out. Yeah. stand out, especially girls। जो इंडिया में एक बड़ी अच्छी बात है कि आर्मी के अंदर जो एनवायरनमेंट है लड़कियों के लिए, उनको एक इंडिपेंडेंस, उनको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलती है कि एक अ, खुले कल्चर में, I don't mean in any other sense. खुले culture means they get an independence to grow Hmm. the way that they should grow, without any bias, without any kind of a ill feeling। उसमें जब बड़े होते हैं, उनका एक नजरिया ही चेंज हो जाता है लाइफ का, Correct. and they become more confident, they become more aware, and they can take strides in any field। आप देखिए I think you're right, sir. I think Anushka Sharma is also a daughter of her army officer, right? And I still remember her speech she gave at one of the awards, and she stands out. You're Oh, yes. absolutely right. She stands out. I think even Priyanka Chopra is, if I'm not mistaken. Yeah, so Yes. they too really stand out. I agree with you completely. सर मुझे एक बात बताइए, जब आप आर्मी में थे और आप जब जाते थे, फॉर एग्जांपल जब not just normal training, for example, it's a situation. I'm sure there must be some situation in your 21 years जिसमें आपने फेस किए होंगे, तो घबराहट होती थी घर में, फैमिली में कि कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्या पता क्या हो रहा है? कैन यू शेयर सम ऑफ दोज challenges which children go through, that wives go through? Of course, आप तो daredevil हो, आप तो आपका तो काम है उधर जाके whatever, attack the enemy and win. That's your goal. But wife की goal वो नहीं होती है. Wife का goal is more about protection and ensuring the family's safe, बच्चे feel secured at home, doesn't feel insecure. तो वो जरा struggles आप जरा शेयर करेंगे, क्योंकि बाकी सब तो बताते हैं struggles वहाँ क्या होती है, लेकिन ये आर्मी वालों की जो फैमिली है, उनकी वाइफ्स की मैं स्ट्रगल्स समझ सकता हूँ, जो ज़्यादा करके इट्स नॉट स्पोकन अबाउट। Yes, you are very right. In fact, this is a very sentimental part of the sitting that we are having। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे याद आ रही है मेरे को, जैसे आप पूछ रहे थे कि एक बार जब कारगिल वॉर हुआ था, हाँ। तो हम इनिशियली भटिंडा में थे। अच्छा।
और वहाँ से जब हमारे को मूवमेंट आया बॉर्डर की तरफ, तो बटालियन पहले राजस्थान बॉर्डर पे गई, बिकॉज़ हमारे सारे बॉर्डर्स एक्टिवेट हो गए थे। लेकिन उस दौरान पे बोला गया कि एक स्पेशल टुकड़ी अ, उस टाइम मेजर नरेंद्र नारंग के नीचे जाएगी फॉर अ सीक्रेट मिशन। एंड इवन आई वाज़ नॉट टोल्ड टिल द लास्ट मोमेंट कि मेरे को कहाँ जाना है। ओके। और मेरे को मूव करना था एंड आई वाज़ टू क्रॉस बठिंडा। हुँ। तो रात का समय था जब मैं क्रॉस कर रहा था बठिंडा, हुँ। एंड आई आल्सो डिडन्ट नो कि मेरे को कहाँ जाना है और मेरे को आगे what are the circumstances awaiting for me. Hmm. And this is a very, very delicate moment. Though you are, as an officer, you are, strong enough to deal with this, but then you're a family man also, and you have a pause, you have a think कि maybe I should talk to my wife. तो मैंने एक फोन लगाया घर में, एंड बोला कि मैं ऐसे ऐसे बठिंडा क्रॉस कर रहा हूँ, एंड आई होप एवरीथिंग इज ओके। शी कुडंट वेट फॉर मी टू क्रॉस बठिंडा। शी सेड कि मेरे को बताओ किस जगह से क्रॉस करोगे, मैं रात को आऊंगी। एंड शी केम एट 2 o'clock in the morning with my daughter just to say hello. My God. My God. Wow. These moments are unforgettable. Yeah. Unforgettable. Beautiful, sir. Thanks for sharing this. Uh, सर मैं थोड़े और आर्मी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा अगर आपको एतराज ना हो तो। अभी आपको तो पता है कि रिसेंटली देयर वाज द कश्मीर पहलगाम अटैक। तो ऑब्वियसली क्या हुआ वहां पे वो तो सब जानते हैं, बट मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है व्हाई नाउ? ओके। सी, टाइमिंग के बारे में अगर आप पूछेंगे हाँ। कि ये कश्मीर अटैक्स अभी क्यों हो रहे हैं और पहले क्यों नहीं हुए, वेल आई थिंक जब हमारे एडवर्सरी हैं वो हमेशा किसी ताक में रहते ही हैं कि कुछ ना कुछ करे। इट्स नॉट दैट पाकिस्तान एवर स्टॉप्स थॉट्स अबाउट वॉर मॉन्गरिंग विद अस। इट एंड उनका एक जो पुराना फिलॉसफी है, जिया उल हक का स्टार्ट किया हुआ है, टू ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts, उसके अंदर उनका स्ट्रेटजी यही है कि कीप सीइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ हमको सॉफ्ट स्ट्राइक्स कर सकते हैं विदाउट देयर मिलिट्री कमिंग इनटू द फोर्स। तो वो एक हमेशा उनका एफर्ट रहता ही है। एंड पहलगाम अटैक तो एक नेशनल स्केल पे एक इवेंट था, इसीलिए सबको मीडिया में आया, सब कुछ आया। बट लेट मी टेल यू, विद इन द मिलिट्री ओके। such incidents at a smaller scale keep happening every month. वाओ। So ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ रुका हुआ है। तो whether the terrorists are infiltrating, or the hideouts are being busted by us, or we are getting some intelligence reports about them, there are constant efforts by them to get ingress into our territory. वाओ। And there are constant efforts by us to keep defending that and keep तो आप ये मान के चलिए, अगर एक इंसिडेंट हो रहा है तो आई कैन एश्योर यू कि 9 इंसिडेंट्स हमने रोक दिए होने से। माय गॉड, माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। तो आपको लगता है कि ये सब, ऑफ कोर्स, आवर नेबरिंग कंट्रीज आर having interest in India for sure, but what do you think our biggest challenge is, as from an army point of view? Is it Pakistan, is it China, or is it something else? From an army point of view, because we are always constantly talking also about the border challenge with China as well. Well, I'm sure our viewers also very, very aware about all these things, but I'll just again tell you, since you asked, कि हम अभी टू फ्रंट वॉर की तैयारी में हैं हमेशा। हाँ। ये एक रियलिटी है। हाँ। सो वी ऑल नो दैट चाइना हैज गॉट इट्स हेजिमोनिस्टिक एम्बिशंस। करेक्ट। ठीक है। एक तरफ उसका ताइवान के साथ है, एक तरफ वो अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव कर रहा है, एक तरफ वो हमारे जो सारे बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर बाय इन कर रहा है। और मेरे ख्याल से वो काफी अच्छे दोस्त भी है पाकिस्तान के ना। वेल, यू कैन नॉट से दोस्त हैं कि नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कन्वीनियंस। Right. सही। So, in fact, you even take America for example. America is today seeing its relationships in
totally in convenience. Correct. You know, Correct. what suits it most, and that's what India has learned. After years, we have a strong prime minister, we have a strong foreign affairs minister. So all these things matter a lot. Right. So coming back to your question, the reality is that yes, we have a two-front war to always take care of. But let me show you, हमारी जो तैयारी है on both the fronts is absolutely bang on with everything in place. And आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख ही लिया है द काइंड ऑफ कैपेबिलिटी दैट वी हैव जी. एंड रिसेंट जो अभी 2 दिन पहले से इजराइल और ईरान का चल रहा है जी. द काइंड ऑफ वॉरफेयर व्हिच इज ऑल द मिसाइल्स व्हिच आर बीइंग फायर्ड Correct. Israel is appreciative today of India's prowess, India's ability to handle so many kinds of multi-streamed, multi-layered offenses in a very nice manner. Right. Fantastic. सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से ग्लोबल थ्रेट बढ़ रही है, आपको लगता है कि यू शुड मेक जॉइनिंग आर्मी कंपलसरी इन इंडिया? फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंगापुर में रहता हूँ और सिंगापुर में कंपलसरी है फॉर मेन टू जॉइन आर्मी, और वहाँ पे तो 2 साल तक है. आपको लगता है कि टू मेक इंडिया मोर सिक्योर्ड we should come up with a program to make every male join the army at least for some time so that we are prepared as civilians to face any uncertainty? क्योंकि होता क्या है कि हम ज़्यादातर बहुत डिपेंड करते हैं आर्मी वालों पर, बहुत रिलाई करते हैं, एंड देन हम उनको कुछ नहीं दे पाते हैं, विच आई फील समटाइम्स एज अ सिविलियन. तो डोंट यू थिंक कि एक वक्त आ गया है कि हम बहुत ही उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं एज अ सिविलियन, हमको भी कुछ करना चाहिए बाय बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम? आई थिंक हमको इंडिया को किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट से देखना चाहिए और सिंगापुर और इसराइल जैसी कंट्रीज के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए जहाँ के 100% कंस्क्रिप्शन है. हाँ, इवन यूएस में भी वो कंस्क्रिप्ट करते हैं सिविलियंस को जब वॉर होती है. हमारे यहाँ पे हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है. हाँ. और हमारे देश के अंदर जो चुनौतियाँ हैं हम्म. अदर देन वॉर आर ऑल्सो fear many, you know, things like removing of poverty has taken ages for us. अभी कुछ उसमें काफ़ी तरक्की हो रही है. जी. हमारी इकोनॉमी को ओपन अप जब किया गया तो उसके अंदर एक बैलेंस बनाने के लिए, हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो यू नीड लॉट ऑफ एक्टिविटी इन द बिजनेस फेयर ऑल्सो. सो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ अगर हम कॉम्बैट ट्रेनिंग कराएंगे उसी से सारा कुछ हो जाएगा. बट येस, यू हैव अ पॉइंट. ये जो हमारे यूथ की एनर्जी है उसको जरूर हमको टैप करना चाहिए. तो एक तरफ तो आप देखेंगे अग्निवीर जो पॉलिसी शुरू हुई है, अच्छा. वो एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी है जिसमें कि यूथ को, जो भी हमारे स्पेशली जो रूरल एरिया से आते हैं, उनको मौका मिलता है कि वो अपना योगदान दें कुछ दिन के लिए और फिर वापस अपने सिविल स्ट्रीम में चले जाए. अच्छा. तो एक बहुत अच्छा ये सुनहरा मौका है उनको योगदान देने का. और उससे क्या बंदिश भी नहीं है. पहले होता था बंदिश होती थी आपको, भाई एक बार फौज में घुस गए तो फिर आप निकल नहीं सकते. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो यूथ को यूज करनी चाहिए. दूसरा मैं समझता हूँ कि एक एनसीसी का प्रोविजन है जो बहुत कम इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं. अच्छा. आप अगर किसी भी कॉलेज को बोले और वो कॉलेज चाहे, हाँ. तो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एनसीसी का एप्लीकेशन दे सकता है और अपने कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को एनसीसी ट्रेनिंग करा सकता है. बहुत बढ़िया. तो ये चीज़ अगर सभी कॉलेजेस कराएं तो एक बहुत ही बेहतरीन माहौल पैदा होगा. नॉट ओनली दैट, यूथ के अंदर एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन, एक मैच्योरिटी आएगी, एक सेंस ऑफ पर्पस आएगा जो कभी-कभी मिसिंग हो जाता है. हम देखते हैं यूथ कभी-कभी यू नो दे गो इन अ डिफरेंट टेंजेंट, दे गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. तो वो सब संभालने के लिए ऐसे लोग बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में. मुझे तो लगता है कि it will really help the youth physically as well as mentally. एब्सोल्युटली. And when they come into their corporate life, that discipline will help them overcome a lot of challenges
which otherwise right now हो क्या रहा है कि I've seen especially that one task, whether it's stress related or if you have a shark behind you, which I'm going to talk about your book, they quit the job कि नहीं हो रहा है और and boss is वो कहते हैं ना कि boss is over expectations. Over expectation है नहीं. It is the requirement of the job. And when you don't do the proper check marks, you could have a airplane crashing, Yes, which is what really happened. absolutely. So maybe I'll also like to get a little bit of your point of view about, since you are into army and the lot of check marks that happens over there, right? You can't get away with it, right? What you think could have been prevented that caused the recent Air India crash? That's a tough one, Kishore, because I've been watching a lot of YouTube videos. There's so many theories floating around. Correct. At this juncture, it will not be really correct on my part to pinpoint कि ये इसकी वजह से हुआ. But having said that, जो broadly निकल के आ रहा है, I can only comment upon that. Yes, the maintenance of the aircraft was something which was left as a less critical task, or I would say it was left to the existing processes alone without understanding the critical need to also identify the right human beings to attend to that task. Because सुनने में आ रहा है कि Turkish company involved थी, or people could have done something wrong, some kind of sabotage, but it's too early for us to pinpoint anything. But yes, certain checks and balances have to be guaranteed in place, especially when they are a national carrier. मुझे एक बात बताइए सर, जब आर्मी की प्लेन उड़ती है तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस तो होते हैं, हर जगह होते हैं. बराबर? तो what is it so different when an army plane takes up? What are the checks and balances to make sure कि वो प्लेन सही है? ऐसा नहीं हो कि वो I remember one army officer mentioning where he threw the grenade and the grenade didn't work. तो सामने वाले ने shot him. Now, again, where are the checks and balances? How do you ensure that the plane taking off is safe? When you're about to launch the missile from the plane, it should get launched. I mean, there are so many checks and balances for the safety, and also the plane is a very expensive equipment. So, ऐसा क्या है checks and balances that we don't hear about on the army side, but we hear so much on the civilian side कि इतने सारे so many things are not looked into or rather overlooked. Don't you think an army kind of a protocol should be brought into the civilian world to ensure that these kind of loss of lives should not happen? किशोर, जहाँ सवाल रहा एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा टेक्निकलिटीज बताने में, तो मैं आई एम नॉट द वन पर्सन हु इज इक्विप्ड टू आंसर दैट. बट ब्रॉडली डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं बोलूँ, तो हमारे कंट्री में जो एक्विजिशंस हो रहे हैं और जो डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेशली मेक इन इंडिया में जो स्टेप्स दिए जा रहे हैं, आई थिंक दिस वाज नेवर बिफोर दैट. And we are now entering into an era where India itself will start exporting weapons, aircraft, missiles, nice. all that. So, वहाँ की कैपेबिलिटी जो है इंडिया की बहुत स्ट्रांग हो चुकी है. रिगार्डिंग योर चेक्स एंड बैलेंसेस, आर्मी इज डूइंग समथिंग विच इज द मोस्ट क्रिटिकल काइंड ऑफ अ जॉब. इट इज द लास्ट बेस्टियन ऑफ द कंट्री. आर्मी के अलावा या आर्म फोर्स के बाहर कुछ भी नहीं है. तो लाजमी है कि जब ऐसा हो तो आर्मी का जो इक्विपमेंट है वो हमेशा टॉप ऑर्डर में हो. और मैं बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, हमारे 1 साल के अंदर कम से कम 3 से 4 चेक्स होते हैं खाली इक्विपमेंट के बारे में. अच्छा. और जो भी इक्विपमेंट, चाहे आपका एक राइफल भी आपके पास है, हाँ.
it also has to service properly because at the time of firing, हाँ. it should not give up, हाँ. right? तो वो एक हमारे जो इंस्पेक्शंस होते हैं, हाँ. हमारे एक ड्रिल्स होती है, दे आर टेकन वेरी सीरियसली। एक राइफल के बैरल के अंदर खरोच भी आ जाए, तो वो जाती है वापस बेस वर्कशॉप में रिपेयर होने के लिए। वाओ! और वही राइफल अगर आप सिविलियन यूज़ करेगा, हाँ. शायद वो 10 साल यूज़ करता रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, हाँ. बट किसी एक दिन जब प्रॉब्लम आएगा, तो वो राइफल फायर नहीं। नहीं करेगा। बिल्कुल। सो ये कि चेक्स एंड बैलेंस है, इवन द स्मॉलेस्ट indicator is taken very seriously and checked for the root cause of that thing what happened. वाह! तो मैं कह सकता हूँ कि करप्शन लेवल एट आर्मी इज एज गुड एज ज़ीरो। कैन दैट बी सेड? This is something which is out of the orbit for any armed forces personnel to answer because ये हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, you know, it is not in our dictionary at all. If at all something would be happening, it is something beyond our purview. But our defense ethos is so strong that one can blindly, say that uniform के अंदर शायद कोई ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. Because every general was once a second lieutenant or a lieutenant. He's grown through the hard years. He's seen the world from a very ground level kind of a zone. And that makes him very grounded. And that makes him very humble. और जिसने कॉम्बैट सिचुएशन देखी हो, जिसने लाइफ और डेथ को नज़दीक से देखा हो, उसके लिए मटेरियल बेनिफिट्स और मटेरियल पोजेशंस का जो इम्पोर्टेंस है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट कभी-कभी ऐसा सुनने में आया है, मुझे तो नहीं, लेकिन कभी-कभी ऑफ कोर्स दिस मस्ट बी वेरी इंटरनल, कैन आर्मी पीपल आल्सो गो रोग? देखो एबरेशंस आर एवरीवेयर, हाँ. वो तो आप लेके चलो, बट द परसेंटेज ऑफ एबरेशंस इन द आर्मी और आर्म फोर्सेस हाँ. is far less as what happens in the civil street. हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वही इतना स्ट्रांग है. वी हैव साइकोलॉजिकल टेस्ट, वी हैव इंटरव्यूज, सो काफी कुछ फिल्टरिंग वहीं पर हो जाती है. Some odd aberrations happen because of influences going along in further in life. Maybe family में कुछ influence है या कहीं पर interaction हो गया है and somewhere you got tempted in the wrong way. And army and the organization has its own ways to sort out these things. आपको लगता है कि इंडियन एयर ट्रेवल इज सेफ आफ्टर दिस इंसिडेंट? Well, when an incident happens, it throws a lot of caution, correct, in the air. एंड मान के चलिए जो भी आजकल पैसेंजर्स जा रहे होंगे एयरक्राफ्ट में, सबके मन में कुछ तो आ रहा होगा क्या हाय हमारा ये प्लेन पहुंच जाएगा कोई से, दे मस्ट बी प्लेइंग इनसाइड, थिंग्स लाइक दैट. दैट्स नेचुरल. बट आप ये लेके चलिए अगेन, कितनी फ्लाइट्स उड़ती हैं इंडिया में एक दिन में और हफ्तों में खराबी होती है, क्या होता है? आई एम श्योर इन्वेस्टिगेशन आर गोइंग ऑन इवन दिस बोइंग एयरक्राफ्ट एंड अगर कुछ टेक्निकल इशू है तो आई थिंक वो सामने आ जाएगा एंड द पीपल विल गेट अक्रॉस दैट प्रॉब्लम आल्सो. बट हैविंग सेड दैट, एक इंसिडेंट के लिए आप उसको आप इम्प्लाई करें और उसको आप सुपर इम्पोज करें बाकी सब एयरक्राफ्ट पे और ट्रैवल पे, आई थिंक दैट नॉट बी फेयर. बिल्कुल. एंड ईच एयरलाइन इज रिस्पॉन्सिबल इनफ टू गेट देयर things in place, and after this incident I'm sure there'll be even more stricter measures followed. बिल्कुल बिल्कुल. सर चलते हैं अभी आपकी आर्मी लाइफ से आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में. आपने आर्मी छोड़ा, you joined the corporate world and now you are into facilities management and into ESG implementation. Am I right, sir? Yeah. सर आप बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि सबसे पहले ESG होता क्या है, and then if you could also share what are the challenges that you face as in facility management and ESG implementation especially that most people are unaware of. आई थिंक ये एक नया टॉपिक है काफ़ी प्रोफेशनल्स के लिए भी एंड सिविलियंस के लिए जो कॉर्पोरेट में नहीं है उनके लिए तो और भी नया है. सो बट
इंडिया के लिए नया नहीं है। अच्छा। या अगर हम अपना ट्रेडिशनल पास्ट देखें, हमारा बहुत पुराना पास्ट इंडिया का देखें, तो हम हमेशा पर्यावरण को अपना एक हिस्सा मानते थे। हमारे कोई भी एक्शंस जो होते थे, उसमें पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ना है, वो एक गिवन था कि वो एक्शन के अंदर शामिल था प्लानिंग के लिए। चाहे वो घर के डिज़ाइन को देख लीजिए, या हमारे कपड़ा और सेंस ऑफ ड्रेसिंग और उसको देख लीजिए, या हमारे लाइफ़स्टाइल को देख लीजिए, या द वे वी ईट उसको देख लीजिए, जो जिस बर्तनों में खाना खाते थे, पत्तों में खाना खाते थे, वो देख लीजिए। तो वी वर वेरी क्लोज टू द नेचर। तो कभी ऐसा होता ही नहीं था कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं या ऐसा कुछ वेस्ट बना रहे हैं जो कि नेचर के लिए हार्मफुल है। इट वाज़ ऑलवेज़ रिसाइक्ल्ड। जी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन शुरू हुआ, तो उसमें क्या हो गया कि वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स व्हिच वर हार्मफुल। Started with construction, started with mining, the roads, the buildings, so on and so forth. और उस टाइम प्लैनेट के अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी एब्ज़ॉर्ब करने की शक्ति थी कि ये सारा वेस्ट वो एब्ज़ॉर्ब करता गया, करता गया, करता गया। लेकिन एक पॉइंट आ गया पिछले 20 वर्षों में कि जब प्लैनेट ने भी बोल दिया कि बस अब मेरी भी बस हो गई है, यू नो अब तो बंद कर दो। हाँ। यू नो उस स्टेज पे क्या हुआ, जो हमारा टेम्परेचर है प्लैनेट का, वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। और अब हालत ये आ गई है, आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, अगर 2 डिग्री भी से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया प्लैनेट का, हाँ। तो काफी लाइफ फॉर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वाओ। इनफैक्ट काफी लाइफ फॉर्म्स डिस्ट्रॉय भी हो रहे होते हैं। हैं, हाँ। एवरी डे 30 स्पीशीज आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। वाओ। और हमारा जो मेथड ऑफ वर्किंग है, हमारा लाइफस्टाइल है, नथिंग इज पॉइंटिंग आउट टूवर्ड्स रिसरेक्शन फ्रॉम दैट पॉइंट। हालांकि काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई हैं यूएन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, ऑन क्लाइमेट कंट्रोल, एंड नेशंस आर प्रॉमिस्ड, बट देन अगेन द एक्शन दैट वी आर टेकिंग, इवन फॉर एग्जांपल द वॉर्स दैट आर हैपनिंग, एक वॉर का जो इम्पैक्ट होता है मिसाइल्स का एंड जो एम्यूनिशन का, that itself raises the temperature of that zone and makes it so environmentally unbalanced. But then humanity is something like that. We have our own reasons, own purposes which have derived till now. अब वहाँ से हमको यू टर्न करना बड़ा मुश्किल है. All we are now wanting to do and wanting people to do is take actions to slow down this process and if possible reverse this process. Otherwise, we are going to hand over this planet in a very bad shape to our future generations. और वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाएंगे. टू लेट। टू लेट. आप अभी भी देखिए, कई जोन्स में इंडिया में आप देखेंगे कुछ एक चिड़िया होती थी जो अब नहीं मिलेंगी. नहीं मिलेंगे। कई जगह पर जो बीज होते थे वो नहीं मिलेंगे. ऑल दीज आर साइंस ऑफ नेचर गेटिंग डिग्रेडेड. सो यहीं पे फिर मेरा एक इंसिडेंट हुआ निकोबार आइलैंड्स में, जब मैंने देखा कि एक फिशरमैन खड़ा है वहाँ बीच पे, और जहाँ पे उसको होना नहीं चाहिए था, बिकॉज़ वो बीच डेज़ोलेट था। तो हम ऑन आवर सिक्योरिटी मिशन वी वेंट देयर एंड वी फाउंड आउट कि वो क्या कर रहा है। तो उससे पूछा भी, आप क्या कर रहे हैं? तो ही सेड कि मैं मछली मारा। व्हेन वी ओपन्ड अप हिज़ बास्केट, वी फाउंड 2 बास्केट्स फुल ऑफ शार्क फिन्स। सो वो शार्क फिन्स को देख के जब मैंने देखा, तो आई वाज टेकन अबैक. एट दैट टाइम आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, बट एज आई लर्नड लेटर, sharks are the top predators of the ocean, and if they get wiped out, पूरा ओशन का फूड चेन बैलेंस खराब हो जाएगा. एंड डू यू नो हाउ मेनी sharks are being killed every year? No. 100 million. 100 million. 100 million sharks every year. Google it and see. Wow. So, and these are sharks, and not to talk about other species, other things that we take in and we eat. And
we have to be mindful of restoring that balance as fast as we can, especially plastic waste, not having enough trees, and mining and construction activity. All these things need to be now seen from that lens of saving the planet, and there is where ESG came in. This was a European standard, which is now being spread all over the world. बट ऐसा नहीं है, इंडिया में नहीं था, बट बिकॉज हम भूल गए हैं तो हमको ये अडॉप्ट करना पड़ता जी। ई का मतलब एनवायरमेंट, हम्म। एस का मतलब सोशल, और जी का मतलब गवर्नेंस. एनवायरमेंट इज द मेन पोर्शन फॉर द एनवायरमेंट सेक. सोशल और गवर्नेंस इसको सपोर्ट करते हैं ठीक से इम्प्लीमेंट करने में. तो वहाँ अभी हर कॉर्पोरेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपने ESG प्लान्स बनाइए और आप कितना योगदान कर सकते हैं इसमें तो आप कीजिए. तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर एनुअल रिपोर्ट्स. So, what is it that you're doing that encompasses ESG in your work? हाँ जी. तो हमारे ESG पैरामीटर्स में एनर्जी सेविंग्स इज अ ह्यूज थिंग. अच्छा। तो हम जैसे एसीज लेते हैं, वो 5 स्टार एसीज लेते हैं और उनको हम एक टेम्परेचर में लॉक कर देते हैं. जैसे 24 डिग्रीज इज द राइट टेम्परेचर. रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि एक सर्टन रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही एसी बिकेंगे मार्केट में. ओह या, एंड दैट इज वन पार्ट. सेकेंड पार्ट इज ऑफ कोर्स वाटर मैनेजमेंट. कि पानी की अभी किल्लत होती जाएगी एज यू गो अलॉन्ग. तो हमने अपने सारे ऑफिस में वाटरलेस यूरिनल्स कर दिया है. प्लस वी आर नाउ trying to save rainwater by water harvesting. Correct. Then is solar panels in a big way. Then how to reuse things rather than waste them away. Correct. तो इन सब चीज़ों पे गौर हो रहा है and we have certain reporting parameters उस पर भी करता है. Beautiful. So, any recent innovation or project in your ESG role that you would be particularly proud of? Yes. Recently, I thought that there is a gap in the Indian market, and I found that there's a huge gap. तो वो गैप कैसा है कि कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या है, फर्नीचर जब हम ऑफिस खाली करते हैं तो फर्नीचर पूरा हम स्क्रैप कर देते हैं. वो स्क्रैप फर्नीचर और स्क्रैप इंटीरियर्स पूरा लैंडफिल में जाता है. अच्छा. और लैंडफिल में जाके फिर वो आपके पोल्यूशन, वेस्ट एंड कार्बन एमिशंस में रिजल्ट करता है. So that's harming the environment in a big way. So I thought, what if we reuse this furniture in our new offices? जनरली क्या होता है, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनके जब नए ऑफिस होते हैं तो एवरीबडी लाइक्स टू हैव प्लस न्यू फर्नीचर. बट नाउ विद द इंक्रीजिंग रियलाइजेशन, you realize that new furniture comes with the environmental cost. You remember, आपके बचपन में शायद होता होगा या नहीं, बट मेरे बचपन में जरूर था. अच्छा. कि मेरे जो ज्यादा कपड़े पहने हुए थे मेरे बड़े भाई का रहे थे. हाँ. तो आपने सुना ही तो होगा. हाँ, किया भी है. दिया भी. सो इट्स समथिंग लाइक दैट. हाँ. कि आप एक चीज को रीयूज करके उसकी लाइफ बढ़ा सकते हो तो क्यों नहीं बढ़ाओ. जी. तो वो एक उस जर्नी में मैं हूँ और मैंने रियलाइज किया कि उसके स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश नहीं है इंडिया में. तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च ऑन दैट एंड आई हैव कम आउट विद अ काइंड ऑफ कैलकुलेटर कि जिससे कि आप अगर कुछ रीयूज्ड फर्नीचर यूज करेंगे तो उसमें कितने कार्बन एमिशंस बचेंगे, तो दैट सर्टिफिकेशन विल बी पॉसिबल. Oh, wow. So maybe this turns into a idea in some time for implementation. Beautiful. That is one. Another thing which we did was, first in the industry in our company, कि हमने लिथियम आयन बैटरीज को यूज किया हमारे बैटरी बैकअप के लिए इन आवर ऑफिसेस. Okay. जनरली लिथियम आयन यूज होते थे टू व्हीलर्स के अंदर या हमारे मोबाइल्स के अंदर. तो ये फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री था जब मैंने ऐसा किया. हाँ. एंड दिस आई डिड इन राइट 2018. अच्छा. उसके बाद बिकेम अ ट्रेंड and the entire industry followed suit. I'm very proud of that one innovation which I did. Excellent. Beautiful. सर, मुझे आप अपने बुक के बारे में बताइए. This is a book written by Sir, and I've started reading this book and I cannot put this down, guys. This is something you must get a hands on. तो सर, ये बुक के बारे में बताइए, Bring Your Own Shark. ये कैसे आपने सोचा to write such a beautiful book which
is not just for the corporates. I think it's for everyone to bring out the best in them. तो सर प्लीज इसके बारे में बताइए. वेल इसके दो बैकग्राउंड्स हैं. हाँ. एक बैकग्राउंड तो मैंने बताया, जो शार्क की एक एपिसोड हुआ था मेरे साथ. बताइए नहीं सर, बताइए. तो वो जो शार्क फिन्स का जो एपिसोड हुआ. हाँ, फिर से बताइए. ओके. हमारे ऑडियंस के लिए. तो निकोबार आइलैंड्स में जब मैं पोस्टेड था, तो हम नेवी के साथ एक सर्वेलेंस एक्सरसाइज कर रहे थे. तो एक बीच पे जब हम गए, तो वहाँ पर मैंने एक फिशरमैन को देखा कि वो बिना वजह के वहाँ पर अपनी बोट के साथ बैठा हुआ है. तो हमने जब चेक किया, तो उसके 2 बास्केट्स में से सिर्फ शार्क फिन्स, कटे हुए शार्क फिन्स मिले. एंड यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ कटे हुए शार्क फिन्स इज? एक बार आप शार्क का फिन काट दो तो शार्क समुद्र में मर जाती है, या उसको कोई और बड़ी शार्क खा लेती है, और या फिर दूसरे प्रेडेटर्स खा लेते हैं, या वो खुद मर जाती है. सो seeing 2 big baskets of shark fins, you can imagine how many sharks he would have killed that day. Yeah. उससे मेरे को एक ध्यान आया. मैंने कहा देखो, इंसान जिस चीज से डर लगता है, हाँ. शार्क से सब डरते हैं, हाँ. उसको उससे भागने की कोशिश करता है, या उसको खत्म करने की कोशिश करता है. बिल्कुल. राइट. बिल्कुल. इट इज फाइट और फ्लाइट. यस. राइट. फाइट और फ्लाइट. करेक्ट. बट एक और तरीका है लाइफ में आगे बढ़ने का. हाँ. अगर उस डर को आप समझ लो, और उस डर को आप अपने हिसाब से अपने अंदर लाओ. सारे डर खराब नहीं होते, लेट मी टेल यू. कभी कभी जब आप एग्जाम के प्रेशर के अंदर पढ़ते हैं, तो भी डर होता है, लेकिन क्या वो डर खराब था? आप बताइए. नहीं. सो देयर आर लॉट ऑफ फियर्स व्हिच एक्ट एज फ्यूल फॉर ग्रोथ. करेक्ट. वो हमारे अंदर है कि हमको पहचानना है. तो दिस वाज वन एस्पेक्ट. हाँ, ये राइट. मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था फियर के बारे में, कि फियर जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास फियर नहीं है तो आप तीसरे वाले की बिल्डिंग से जंप कर लोगे. Yes, that I would say is one of the examples. हाँ. The second thing which I want to talk about is a very interesting story which I read. It's about Japanese fish tank, ओके. and that forms the basis of the entire ethos, the entire concept around the book. तो Japanese are fish lovers. उनको चाहिए कि fish fresh और tasty मिले हमको. So when they started long back getting the fishes from the ocean, तो fishermen used to use freezers. फ्रीजर्स में मछली तो आ जाती थी, और टेस्ट भी थोड़ा ठीक होता था, लेकिन मजा नहीं आता. देन दे सेड कि ओके, लेट्स गेट अ बेटर थिंग डन. हम एक बड़े बड़े फिश टैंक्स बना देते हैं ट्रॉलर्स के अंदर, उसमें तो पानी भर देंगे, तो फिशेस को उसके अंदर लेके आएंगे और फिश जिंदा रहेगी. अब होता क्या था, फिश जिंदा तो रहती थी, लेकिन लाइवली नहीं रहती थी. इट शुड बिकेम स्लगिश. तो किसी एक फिशरमैन ने आइडिया निकाला. कहता है ऐसा करते हैं, एक छोटी सी शार्क उस फिश टैंक में डाल देते हैं. जैसे वो शार्क डाली, तो फिश फियर के मारे दे बिकेम एजाइल, एंड दे बिकेम so lively, and they kept going around in circles to save themselves from the shark. कि वो जब शोर पे पहुंचते थे तो एकदम तंदुरुस्त, fresh. Now, though it's a very interesting story at one end, it gave me a thought process. तो मैंने सोचा कि हमारे सबकी जिंदगी में कोई ना कोई शार्क पीछे पड़ी हुई है, और काफी बार हमको पता भी नहीं है ये शार्क हमको कहाँ ले जा रही है. चाहे वो आपका जॉब का स्ट्रेस है, चाहे आपको प्रमोशन का स्ट्रेस है, चाहे आपको मैरिज का स्ट्रेस है, चाहे आपको एडमिशन का स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस है. तो आपको पीछे से आपको एक फियर पकड़ा हुआ है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे, और बिकॉज उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में भागते हुए जा रहे हैं, एंड दैट मेक्स यू टेक रॉन्ग डिसीजंस फॉर विच इट इम्पैक्ट्स यू इन योर करियर्स, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर रिलेशनशिप्स, एवरीवेयर. राइट. तो अगर चॉइस होती है आपके पास, कि हाँ, मेरे को भगाने के लिए कुछ तो चाहिए, पीछे कुछ तो फ्यूल चाहिए, और क्यों नहीं वो फ्यूल मैं अपने चॉइस से लेके आऊं, जो मेरे को आगे चैलेंजेस क्रॉस करने के लिए लगेगा. भाई, आप पहाड़ी चढ़ रहे हो, आपके पास अगर कैराबाइनर नहीं है, आपके पास रोप्स नहीं है, तो आप पहाड़ी कैसे चढ़ोगे? नहीं चढ़ पाएंगे. आप अगर वहां पे साइकिल लेके चले गए, तो आप काम आएगी क्या? नहीं आएगी. इसी प्रकार से
हर जर्नी में आगे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को बीट करने के लिए आपको क्या चाहिए? पहली बात तो चैलेंजेस को आप अपने दायरे में लेके आइए, उनको समझिए। समझेंगे तो आपको उसका तरीका मालूम पड़ेगा हाउ टू बीट दैट चैलेंज। और इसी से मेरा एक जर्नी शुरू हुआ समझने का। इससे पहले मेरे को नहीं मालूम था कितने तरह की शार्क होती। अच्छा। बट जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, वुड यू बिलीव देयर आर मोर देन 500 स्पीशीज ऑफ शार्क्स? माय गॉड, 500। या डू यू ऑल्सो नो sharks are the oldest creatures on the planet, older than the dinosaurs. Dinosaurs are extinct हो गए, sharks are still existing. कुछ तो होगा नहीं। Adaptability. And they are the top predators also. Yes. And like sharks, human beings are the top predators on the planet. Correct. Right? तो अगर हमको भी सर्वाइव करना है उनकी तरह से, कुछ सीखना पड़ेगा। हाँ। तो जब चैलेंज आएंगे तो आपको किस तरह की शार्क का बिहेवियर सूट करेगा, वो आपको समझना है। सो मैंने बुक के अंदर, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग इट शॉर्ट एंड स्वीट, मैंने 9 तरह की शार्क्स को यूज किया है। उनके ऊपर एक फिक्शनल स्टोरी और एक ट्रू वर्ल्ड स्टोरी, रियल वर्ल्ड स्टोरी को मैंने इंटीग्रेट किया है। और उसके अंदर से की लेसन्स कैसे निकालते हैं और एक्सरसाइजेस क्या करनी है आपको डेवलप करने के लिए, इट विल बिकम आई थिंक अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, एंड वट एवर फीडबैक आई एम गेटिंग इज पीपल आर लविंग इट। I'm simply loving it. We will be putting the link of your book in our podcast for sure. But I think more than the book, sir, आपको इसके ऊपर ट्रेनिंग करनी चाहिए। जो जो आप बता रहे हो बुक के अंदर, जो मैंने पढ़ा है, आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करते हैं इन दिस एरिया ऑफ ब्रिंगिंग योर ओन शार्क? Well, currently I'm working, and currently I've just written this book. But yes, there's a great need, because मैं जब देखता हूँ मिडिल लेवल मैनेजर्स को और जो मैनेजर्स ट्रांजिशन देख रहे हैं, दे आर सिंपली, मोस्ट ऑफ देम आर वेटिंग फॉर ग्रोथ टू हैपन। वेट कर रहे हैं कि हाँ, अपने आप भी सब कुछ हो जाएगा। हाँ, दैट्स द रॉन्ग फिलॉसफी। आइदर दे आर वेटिंग और दे आर कॉपिंग अदर्स, कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, एंड दैट हैपेंस राइट फ्रॉम स्टूडेंट years till the person is a manager or a worker or professional somewhere. It doesn't work that way. You have to understand your own destination, your own journey, and you have to understand your challenges, and you have to get those challenges into your own tank, if I call it, in the form of your own shark. So you stop fearing those challenges, you stop fearing that shark, and then you swim with the shark. Amazing, amazing. Well, definitely you should start. Uh, and maybe I'll be your first client. चलो सर, अभी कुछ मजेदार बात करते हैं। विल डू सम रैपिड फायर राउंड। Oh, sure. ठीक है ना? अपार्ट फ्रॉम योर बुक, विच अदर बुक वुड यू गिफ्ट और रेकमेंड समवन टू रीड? There's a very interesting book in 2012, I think it came out, Hmm. called Obstacles is the Way. Obstacles is the way. अच्छा, That aligns with my book also in a very deep manner. अच्छा, It's written by Ryan Holiday. ओके। So Obstacles is the Way speaks about, कि obstacles को ढूंढना ही आपको रास्ता आगे का दिखाता है। अरे वाह, That's a wonderful book. मैं जरूर पढ़ूंगा। विच इज वन बिजनेस लीडर यू वुड लव टू हैव डिनर विद? Mr. Anand Mahindra, आनंद महिंद्रा, यस। Vision on Wheels. I think he's got wonderful vision, and he's converted the wheels into what we see today. Yes, yes, absolutely. Uh, one most overrated buzzword in the boardroom today. I think it's digital transformation. आप किसी की पास भी जाइए and बोलिए, he will say, I'm doing digital transformation in my organization. Whereas we find out sometimes it's as basic as, doing refurbishment of laptops in a light manner. ठीक है. One lesson the army drills in that B schools are missing. Yeah. So that is about ownership and accountability. Okay.
and that's also one of the chapters in my book. Okay. Which is represented by the black tip shark. Mm. This shark is amazing. Once it swims, it takes ownership of its area. Wow. It doesn't allow anybody to dominate. So, like I said, army में जो सिखाते हैं, own it, Mm. lead it. Mm. There's no choices. No. And there's no exit strategy. Businesses may, generally people say, oh, exit strategy kya hai now. Well, when you own something and you lead it, you better not have an exit strategy. You better have winning strategy. मुझे शार्क्स के बारे में एक सवाल पूछना है. मैं पढ़ रहा हूँ आपका बुक, खत्म नहीं हुआ मेरा. आपने 9 शार्क्स के बारे में बात किया. शार्क्स में ऐसा होता है कि अगर मैं एक शार्क हूँ, वन स्पीशी, और मेरे सामने कोई दूसरा स्पीशी आता है, तो मैं उसको स्पेस देता हूँ कि आई डोंट अलाउ हिम टू एनक्रोच इनटू माय स्पेस. ऐसा होता है उनमें कुछ? डू दे हैव दिस काइंड ऑफ अ टेरिटोरियल kind of a thing which usually dogs have, Yes and no. Okay. So there are some shark species like the blue shark, which are very friendly. So they don't mind if there are other sharks around. But there are species like the great white shark or the mako shark. Mako shark. They're very ferocious, very dominating. They generally don't allow the smaller sharks to come in between. And another thing, sometimes they also eat the smaller sharks. So ये एक उनमें environment में चलता है. If your life was a movie, what would the title be? हंसते जख्म. हंसते जख्म. अरे वाह. Because even scars, when they have smiles, look amazing. And by the way, even sharks have scars. Yeah, I'm sure. There is something more to it, हाँ. Sharks की जो indiscriminate fishing होती है, तो sharks के मुंह पे काफी hooks लग जाते हैं. And they carry these hooks in their mouth while they are swimming. Oh. And there's one wonderful person I must mention here. Her name is Christina Zenato. Okay. She's written a paragraph in my book. Okay. She's in the Bahamas. वो क्या कर रही है? पिछले 30 साल से sharks को heal कर रही है. Wow. Amazing lady. And अभी तक उसने शायद more than 300 hooks निकाले हैं sharks के मुंह से. And she's healing them. And sharks have a way to spread the word. जब से उसने शुरू किया, she's found other sharks automatically coming to her. अच्छा. It's amazing. You just Google or Insta her. We'll do it. Christina Zenato, you'll find her very For sure, I'll do it. For sure. So thank you so much. आप हमारे podcast पर आए. And guys, this is a book you should grab your hands on. Of course, we'll share the link with you. But there's so much to learn from this podcast, so much to learn from this book. और अगर आपको अच्छा लगा हमारा पॉडकास्ट तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए. हम यू ब्रिंग द बेस्ट फ्रॉम इंडिया as well as the finest in the world to our podcast. So thank you so much. And we definitely wish you all the very best. और आपका जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होगा तो प्लीज़ हमारे साथ भी शेयर कीजिए. जब आप लॉन्च कर रहे हैं हम हमारे ऑडियंस को बताएंगे. And definitely I would like to be a participant of your corporate training. Thank you so much. Thank you so much, sir. Bye-bye. Thanks for coming.